प्यारे बच्चों, how are you all? Hope you all are fine. Okay, my dear kids, we finished that Jawaharlal Nehru's lesson, right? So we have to do the book exercise. All take your textbook. Page number 92. There you have seen the next second question. Okay, चमकीला रोड़ा. यहाँ हम रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है. रेखांकित शब्द विशेषण. विशेषण, दिस अंडरलाइंड वर्ड इज द विशेषण एडजेक्टिव. दैट इज अ चमक संज्ञा में. चमक संज्ञा इज चमक. फ्रॉम दैट दे हैव एडेड ईला. chamak plus ila chamkila, that only chamkila roda. So with संज्ञा they have added ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है चमकीला रोड़ा. सो निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो. सी सो द डाउन सम 4 words are there, right? पत्थर, रस, कांडा, जहरीला. So you should add this ईला प्रत्यय there and you have to add that one संज्ञा also. Okay, like that you have to write. See, pattar, patreela, rasta. Pattar, patreela, rasta. Pattar plus eela, patreela. Then ras, rasila, am. Ras, rasila. Then kanda, kanda. What will come? Kandila, pauda. Then zahar, zahreela, samb. Okay, write that. Patreela, rasta, rasila, am. Kandila, pauda, zahreela, aap. Okay, finished. Write this. Okay, write this on your textbook. Then third question, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो. यह वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना है. इसलिए जब तुम मेरे साथ रहती हो, when you are with me, तो अक्सर मुझसे बहुत सी, if you are with me means you are asking more questions with me. So these two sentences, this one sentence is the joining of two sentences, right? जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बात. So that are the that is one sentence with दो वाक्यों को मिलाकर बना है. That sentence is made by joining two sentences. So इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब, तो जब, फर्स्ट जब, then second one started with तो, isn't it? So जब तो means तब कर रहे हैं. So जब तो, that only joined these two sentences. इसलिए इन्हें योजक कहते हैं. What is that we will say? Sorry ma'am. योजक. Underline that my dear kids. योजक. योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अवयव का एक प्रकार होते हैं. नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो. इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ. सी सम सेंटेंसेस, सम वर्ड्स एनालिस हियर. बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, ना कि, या, ताकि. These sentences you should add with this, fill with this sentence. Okay, first one. कृष्णन फिल्म देखना चाहता है. डैश में मेले में जाना चाहती हूँ. डैश में मेले में जाना चाहता. कृष्णन फिल्म देखना चाहता है. कृष्णन wants to see film, but I want to see the मेले. So परंतु, but. परंतु means what? But. That परंतु you write there. Okay, परंतु. Right there, परंतु. 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 Right there. Finished वहाँ. Then मुनिया ने अब सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है. मुनिया has seen the dream. What she has seen कि वह चंद्रमा पर बैठी है. She has seen that she is sitting in the moon. Key. Right, key. Second one. Then छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे. डैश जालंधर. दो छुट्टियों में, in the holidays and all we will go to दुर्गापुर और जालंधर. तो, या means first one तो,
हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे या मीन्स और Jalandhar. Sometimes we will go to Durgapur or Jalandhar like that. सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ. सब्जी कट द वेजिटेबल एंड कीप फॉर व्हाट घर आते ही मैं खाना बना लूँ. देन ओनली आई कैन प्रिपेयर फूड वाइल्स कमिंग टू होम. ताकि लाइक दैट. यदि डैश मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी डैश में यह बात न करती. if she will take it as a bad thing means I will not say it to her. यदि first one यदि, second one तो. यदि तो then इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए आज अनाज महंगा है. this time it was crops was not good so the rice and all is very expensive. इसलिए means because so or because. so आज अनाज महंगा है इसलिए. विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच. विमल is not learning German ना कि French. this na ki only will come here. Okay, na ki finished ma. Okay, finish it. Then we'll go to the notes. पाठ 12 संसार पुस्तक है. अर्थ इरादा इंटेंशन. टापू आइलैंड. जानदार चीज लिविंग थिंग. विद्वानों स्कॉलर्स. रोडा पेबलस्टोन. दामन वैली. once again इरादा इंटेंशन. टापू आइलैंड. जानदार चीज लिविंग थिंग. विद्वानों स्कॉलर्स. रोडा पेबलस्टोन. दामन वैली. देन हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद. अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो. यू ऑफन आस्क मी मेनी थिंग्स. यू ऑफन आस्क मी मेनी थिंग्स. अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो. यू ऑफन आस्क मी मेनी थिंग्स. मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू आंसर दम. आई ट्राई. यू हैव टू लर्न द इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश बोथ यू शुड लर्न. ओके. मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू आंसर दम. once again अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो. यू ऑफन आस्क मी मेनी थिंग्स. मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू आंसर दम. किताबें कौन लिखता. हु राइट्स बुक्स. किताबें कौन लिखता. हु राइट्स बुक्स. देन लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है. लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है. लेखक ने पेड़ पौधों पत्थरों नदियों जंगलों हड्डियाँ आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहता है. विच इज़ द लेटर ऑफ नेचर. द पोएट इज द ऑथर इज टेलिंग द लेटर ऑफ नेचर एज व्हाट एंड ऑल इज द लेटर ऑफ नेचर्स. पेड़ पौधों ट्री एंड लीव्स. पत्थरों स्टोन्स. नदियों रिवर्स. जंगलों फॉरेस्ट. हड्डियों द बॉन्ड्स आदि एक्सेट्रा आर दी प्राकृतिक चीज. सो नेचुरल थिंग्स एंड ऑल ओनली प्रकृति के अक्षर का. these are these natural things are the letters of nature. लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है. लेखक ने पेड़ पौधों पत्थरों नदियों जंगलों हड्डियाँ आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है. लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी. लाखों करोड़ों वर्ष पहले and lakhs and crore years before how was our earth. लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी. It was so hot. लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी. लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी. मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है. मसूरी एंड इलाहाबाद was there India's which place it is there. मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है. मसूरी इज़ देयर इन द उत्तराखंड प्लेस एंड इलाहाबाद इज़ द उत्तर प्रदेश प्रांत में का शहर. दीस आर द टाउन्स ऑफ उत्तराखंड एंड ऑल्सो द उत्तर प्रदेश. ओके. नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था. नेहरू जी हैज़ रिटन दिस लेटर टू होम.
नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था. He was written this letter to his daughter इंदिरा. नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था. लेखक के पन्नों का संकलन किस नाम से है? लेखक के पत्रों का संकलन पिता के पत्र पुत्री के नाम से है. What he was written these letters and all now what it was included in what? It was written in his book named पिता के नाम पिता के पत्र पुत्री के नाम. From this only he has taken everything. लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? लेखक के पत्रों का संकलन पिता के पत्र पुत्री के नाम से है. Okay ma'am. That's all today. Finish the notes, finish the book exercise. That's all for today. धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों.